Welcome with Kangani sir. Now today I came with your TY BSc semester 5 chapter number 2 electrochemistry. Now in this module we will study some basic terms and concepts. First we will study what is meant by electrochemistry, then after basic terms related with the electrochemistry. What are the different types of electrochemical cell, and then after type of electrode. So today I have done something new for you people. So let's start. First, electrochemistry. What is electrochemistry? Then we can define in this way. Electrochemistry is a branch of chemistry. In this, chemical reaction take place into the solution or on the surface of electrode. This we have to study. Now during this reactions, electron will flow from one electrode to another electrode, or in a solution through ion. Electricity will transfer. So this thing we have to study in electrochemistry. But आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी एप्लीकेशन क्या है. I will use only Hindi and English. Gujarati will not use. So out of Gujarat people can study my lecture. तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है. सो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सपोज सिल्वर आर्टिकल है उस पर गोल्ड का लेयर लगाना है. गोल्ड का कोटिंग लेयर से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कोटिंग. सो फॉर गोल्ड कोटिंग वी आर यूजिंग. आप जानते हो कि भाई हमारे व्हीकल है, सपोज होंडा हीरो होंडा है तो उसकी जो प्लेट है रिंग है उस पर निकल और क्रोमियम का लेयर लगा है. सो इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फिर डे टू डे लाइफ में हमें कंस्ट्रक्शन में जो मेटल रोड यूज होते हैं उसको कोरोजन ना हो इसलिए उसमें डिफरेंट मेटल मिक्सचर किए जाते हैं. तो वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेबल एट ए लॉट ऑफ प्लेसेस. सपोज हम पेंट इंडस्ट्री यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट. सो टू प्रिवेंट ए कोरोजन, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ते आए हो स्टैंडर्ड 11 से. 12th में भी पढ़ा होगा, FYS में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो उसकी बेसिक टर्म हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच atom, ion or molecule loses electron. During any chemical reaction, if atom, ion or a molecule losing electron, then it is known as a oxidation reaction. For example, here zinc metal is losing 2 electron and converting in a Zn plus 2 ion. So here electron is lost by a atom of an element. So it is oxidation reaction. यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, उनमें से होता है जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. याद रखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑल्सो ऑक्सीडेशन. और बेसिक डेफिनेशन जो आप 11th 12th में पढ़े थे कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन if oxygen is added or hydrogen is removed, then also it is known as a oxidation reaction. So here repetition that the reaction in which oxidation number of atom increase, it is known as a oxidation reaction. Here oxidation number of zinc is increasing from 0 to +2. चलो आगे देखते हैं रिडक्शन क्या होता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Now reduction. What is meant by reduction? The chemical reaction in which atom, ion or molecule gain electron. If electron is gained by atom, ion or molecule, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, then it is known as a reduction reaction. यहाँ पर देखिए कॉपर +2 आयन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. Now 2 electron is adding in a copper +2 ions, therefore it is known as a reduction reaction. तब आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सोचिए. यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 में से डिक्रीज होकर 0 हो गया. सो वी कैन से दैट द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ए रिडक्शन. सो रिडक्शन की दो डेफिनेशन होगी. The reaction in which electron is gained by atom, ion or molecule, that is also reduction. The reaction in which oxidation number decrease for atom, ion or molecule, that is also
रिडक्शन रिएक्शन। और ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो आपको पता ही है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड, दैट इज नोन एज ए रिडक्शन रिएक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। बाय एजेंट रिड्यूसिंग, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करता है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सो वी कैन डिफाइन इन दिस वे, the substance which carried out reduction of another substance, यानी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे का रिडक्शन करता है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब दूसरे का रिडक्शन करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो वी कैन डिफाइन इन दिस वे, the substance which carried out reduction of another substance is known as a reducing agent and itself undergo oxidation reaction, यानी reducing agent का हमेशा oxidation होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या, द सब्सटेंस विच कैरिड आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी दूसरे सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीडेशन के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन लेगा यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, अपने का रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स दूसरे का रिडक्शन करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि चलो रिडक्शन क्या होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है, तो यानी कॉपर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, यानी जिंक है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक मैंने बताया आपको, जिंक है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हाफ रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज हाफ रिएक्शन। सपोज यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था, यस ये वाला, यहाँ पर ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, उसके पहले वाले रिएक्शन देखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन था। तो चलो इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं वो समझते हैं। इलेक्ट्रोड, द मेटल स्ट्रिप और नॉन मेटालिक रोड ऑन विच सरफेस केमिकल रिएक्शन अकर इज नोन एज ए इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। उसकी सरफेस पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। सो द मेटल स्ट्रिप और नॉन मेटालिक रोड लाइक ए ग्रेफाइट ऑन सरफेस reaction occur is known as a electrode. Now electrode are used to construct electrochemical cell, यानी हमें electrochemical cell बनाना है तो हमें electrode चाहिए। Now the electrode on which oxidation reaction occur is known as a anode. So the metal strip और non metallic rod जिस पर oxidation reaction होता है उसको हम बोलेंगे anode। For example, यहाँ पर एक रिएक्शन है, जिंक इज कन्वर्टिंग इन ए Zn+2, यहाँ पर जिंक स्ट्रिप है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक इज वर्किंग एज ए एनोड, ये एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड है और एनोड है। अब आगे बढ़ते हैं, कैथोड। कैथोड यानी क्या, द मेटल स्ट्रिप और नॉन मेटालिक रोड ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन अकर। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, यानी जो मेटल स्ट्रिप या नॉन मेटालिक रोड पर रिडक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कैथोड। देखिए यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ। यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हुआ यानी कॉपर यहाँ पर क्या है, कैथोड है। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन, एनोड मींस द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, कैथोड मींस द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन अकर। तो जिस पर जो रिएक्शन होती है उसके हिसाब से उसको बोलते हैं। चलो रिडक्स रिएक्शन यानी क्या, नाउ whenever oxidation reduction reaction take place simultaneously, यानी रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है
उसी टाइम पर दूसरे का रिडक्शन होता है। साइमल्टेनियसली मीन्स व्हाट? एट ए टाइम। देन इट इज नोन एज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स सपोज जिंक स्ट्रिप वी हैव डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जिंक है, मेटल स्ट्रिप है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर +2 है। तो अब देखेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक इज कन्वर्टिंग इन ए Zn+2। अब जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करेगा विल बी गेन बाय ए कॉपर +2 आयन एंड कन्वर्टिंग इन ए कॉपर मेटल। तो यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हुआ, उसी टाइम पे दूसरे का रिडक्शन हुआ। then this entire reaction is known as a redox reaction. So we can simply define in this way the chemical reaction in which oxidation, reduction reaction take place simultaneously is known as a redox reaction. So we can say in this way also the sum of oxidation of reaction and reduction of reaction means also redox reaction. देखिए यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो जिंक में कॉपर +2 ऐड हो गया और Zn+2 के साथ कॉपर ऐड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है वो सामने सामने, तो वो कट हो जाएंगे। देन वी गेट दिस एंटायर रिएक्शन व्हिच इज रेडॉक्स रिएक्शन। So by doing sum of oxidation and reduction of reaction, one will get entire redox reaction. तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।